રાવણે સીતાનું હરણ કર્યું હતું। સીતાની શોધમાં રામ અને લક્ષ્મણ મહિનાઓ સુધી જંગલમાં ફરતા રહ્યા। બાદમાં લક્ષ્મણે પથ્થરો પર કેટલાક ચિત્રો બનાવી રામને સીતા હરણની સમગ્ર કહાની બતાવી હતી। કહેવાય છે કે તે પથ્થરો આજે પણ છે। તેના પર બનેલા ચિત્રો ઝાંખા થઈ ગયા છે, પરંતુ તે આજે પણ સીતા હરણની સમગ્ર કહાની સંભળાવે છે। કોરબાથી આગળ જવા માટે અમારે એક ગાઈડની જરૂર હતી, જેથી રસ્તો ભટક્યા વગર મંજિલ સુધી પહોંચી શકાય। કોરબામાં અમારી મુલાકાત હરિસિંહ સાથે થઈ, જેઓએ સૌથી પહેલા આ નિશાનને જોયા હતા। वहां से जब हरण हुआ सीता का, तो उसको खोजते खोजते राम और लक्ष्मण पीछे चले गए थे दूल्हा दुल्ही पहाड़ पे। वहां पे लक्ष्मण जी ने याद में वहां पर चित्र बनाया कि अगर हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ से सीता क्या है और हिरण का भी चित्र उसी दूल्हा दुल्ही पहाड़ में बना हुआ है। उसके बाद वहां से भटक 3 कोस और फिर बढ़े दक्षिण की ओर, तो वहां पर सीता चौकी करके जगह है, जहां पर लक्ष्मण जी ने सीता हरण के संपूर्ण कथानक वहां पर चित्र बनाया। पहले हिरण बनाया, फिर पंचवटी का आश्रम बनाया, फिर वहां पे घसीटते हुए एक स्त्री आकृति को लेकर जा रहे थे वो बनाया, और फिर लास्ट में पुष्पक विमान का चित्र बनाया। तो वो लक्ष्मण जी का बनाया हुआ चित्र वहां पर आज भी आप देख सकते हैं। સીતાનું હરણ તો પંચવટીમાં થયું હતું। બાદમાં તેમની શોધમાં રામ અને લક્ષ્મણ છત્તીસગઢ તરફ કેમ આવ્યા હતા, તેની સાથે વર્તમાનની સાથે પૌરાણિક નકશાને પણ સમજવો જરૂરી છે। વાલ્મીકી રામાયણ પ્રમાણે સીતા હરણ પંચવટીમાં થયું હતું, જે આજે મહારાષ્ટ્રના નાસિકમાં છે। અમે જે નિશાનીની શોધમાં છત્તીસગઢના દંડાકારણ્યમાં રેનખોલ ગામ જઈ રહ્યા હતા, તે આ જગ્યા પર છે। બંને વચ્ચે લગભગ 1300 કિલોમીટરનું અંતર છે, પરંતુ કહેવાય છે કે ત્રેતા યુગમાં આ સમગ્ર વિસ્તાર પંચવટીનો જ ભાગ હતો, જે દંડક વનની સરહદમાં આવતો હતો। રેનખોલ ગામની આગળ પર્વતીય રસ્તો શરૂ થઈ જાય છે। મદદ માટે સ્થાનિક આદિવાસી લોકોની જરૂર હતી। અનેક લોકો સાથે વાત કરી, મુશ્કેલીથી એક વ્યક્તિ સાથે આવવા માટે તૈયાર થયો। ये उन पहाड़ी कोरबा आदिवासियों की बस्ती है जो कुछ साल पहले तक दंडकारण्य के इस बीहड़ जंगल में गुफा और कंदराओं में रहते थे, और कुछ ही साल पहले सरकार इन्हें इस बस्ती में ले आई है। और यही वो लोग हैं जो राम से जुड़ी हुई उन निशानियों को जानते हैं। उन्हीं में से एक पहाड़ी कोरबा जयसिंह हमें राम की उन निशानियों तक ले जा रहे हैं, और जयसिंह के हाथ में ये हथियार, ये तीर कमान देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इंसानी बस्ती के बाहर से ही खतरनाक जानवरों की आमद शुरू हो जाती है, और उसी हिस्से में आगे बढ़ते हुए हमें राम की निशानियों तक पहुंचना है। અમારી સફરનો આ છેલ્લો રહેણાંક વિસ્તાર હતો। ત્યારબાદ 7 પર્વતો સાથે ટકરાવાનું હતું। કેટલીક નદીઓને પાર કરવાની હતી, જંગલની અનેક મુશ્કેલીઓ સામે ઝઝૂમવાનું હતું। ત્યારે જોવા મળશે 8000 જૂના શ્રીરામ સાથે જોડાયેલા નિશાન। એ શૈલચિત્ર જે સીતા હરણની કહાની રજૂ કરે છે, જેને લક્ષ્મણે પોતાના હાથથી બનાવ્યા હતા। સાંભળવામાં સારું લાગે છે, પરંતુ ત્યાં સુધી પહોંચવું એટલે કે ખતરાને આમંત્રણ આપવું હતું। રાવણના પુષ્પક વિમાન પર દુનિયામાં આજે પણ શોધ કરવામાં આવી રહી છે। કહેવાય છે કે તે શૈલચિત્રો એક ચિત્ર પુષ્પક વિમાનનું પણ હતું, જેને આજે દુનિયા પ્રથમ વખત જોવાની હતી, પરંતુ ત્યાં સુધી પહોંચવું આસાન નહોતું। અમારી ટીમને સૌથી મોટો ખતરો કાળા ચિત્તાથી હતો। જંગલના જે વિસ્તારમાં અમે જવાના હતા એ કાળા ચિત્તાનો વિસ્તાર માનવામાં આવે છે। દાવો છે કે વન વિભાગની ટીમે કાળા ચિત્તાને જોયો પણ હતો। મંજિલ હતી શ્રીરામના સમયના શૈલચિત્ર,
જેમાં સીતા હરણની સમગ્ર કહાની જોવા મળે છે, જેને કેટલાક લોકોએ જ જોઈ છે અને આજે આપણે પણ તે જોઈશું. दंडकारण्य के जंगल में हमारे सफर की अभी ये शुरुआत है और इस नज़ारे को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जंगल में हमारे आगे का सफ़र कितना खतरनाक और रोमांच से भरा हुआ होगा. इसी तरीके से सैकड़ों चट्टानों को पार करते हुए हमें करीब 3 पहाड़ों को और चढ़ना है और उसी के बाद हम राम से जुड़े हुए साक्ष्यों तक आपको पहुंचा पाएंगे. કહેવાય છે કે આ જંગલમાં રામાયણ સાથે જોડાયેલા અન્ય 2 પુરાવા પણ છે. અહીં નજીકમાં જ માયાવી રાક્ષસ મરીચની ગુફા હતી, જેણે સોનાના હરણનું રૂપ ધારણ કરી સીતાને લલચાવ્યા હતા. કહેવાય છે કે જ્યારે સીતાને લઈને રાવણ લંકા જઈ રહ્યો હતો ત્યારે કેટલાક સમય માટે પુષ્પક વિમાન આ જંગલમાં ઉતર્યું હતું. દાવો એ પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે કેટલાક સમય પહેલા અહીં પુષ્પક વિમાનના નિશાન પણ જોવા મળતા હતા, પરંતુ સમયની સાથે તે નાશ પામ્યા. હવે આ કહાનીઓમાં કંઈ દમ પણ છે કે પછી હવામાં વાતો કરવામાં આવે છે એ ત્યારે જ સાબિત થઈ શકે છે જ્યારે અમને 8000 વર્ષ જૂના શૈલચિત્ર મળશે, પરંતુ મંજિલ હજુ દૂર હતી. दंडकारण्य के जंगलों में चलना कितना कठिन है, लोग हमें क्यों इस जगह पर आने मना कर रहे थे, ये बात अब हमारी समझ में आई है कि ये रास्ता बिल्कुल इंसानों के लिए नहीं बना हुआ है. इंसान इस रास्ते पर बिल्कुल नहीं चल सकते हैं. लाइए आप लाइए इसको. देखिए इस तरीके से एक दूसरे का सहारा लेकर और इस तरह से एक दूसरे की मदद करते हुए हमें यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ रहा है. अगर कोई अकेला इंसान इस जंगल में अगर फंस जाए तो उसके लिए आगे बढ़ पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है. देखिए एक तो ये चट्टानें पूरी तरीके से खड़ी है, यहाँ पर पैर रखने के लिए भी बिल्कुल जगह नहीं है. नीचे कई फीट गहरी खाई है और उन खाइयों में सिर्फ जो है पथरीली चट्टानें हैं. ऐसे में अगर गलती से हमारा एक भी पैर फिसला तो हम सीधे नीचे सैकड़ों फीट गहरी चट्टानों से जा टकराएंगे, जो हमें काफ़ी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है. ગાઢ જંગલોમાં કેટલાક પાકા મકાન જોઈને અમે ચોંકી ગયા. છેલ્લો રહેણાંક વિસ્તાર તો અમે ઘણો પાછળ મૂકી દીધો હતો. પછી આ મકાન ક્યાંથી આવ્યા? इन मकानों के स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो एक काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. इस तरीके के मकान जो होते हैं, इस तरीके की दीवारें जो होती है वो अब नहीं बनती. ये बड़े बड़े पत्थरों वाली दीवारें हैं और इसको जो है चूने और रेत का जो मिश्रण होता है वो मिलाकर जोड़ा गया है, दीवारें खड़ी की गई है और ठीक उसी तरीके के मिश्रण से ये जो है स्लैब का स्ट्रक्चर भी बनाया गया है. આ ગાઢ જંગલમાં આ મકાનોને કોણે બનાવ્યા? કેમ બનાવ્યા? શું તેનો સંબંધ પણ શ્રી રામ સાથે જોડાયેલા પુરાવા સાથે હતો? તેનું રહસ્ય હરિસિંગે बताવ્યું. ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की ये संरचना है. यहाँ पर उस समय राम के शोध के लिए फॉरेनर आए थे, साथ में कुछ भारतीय जो पुरातत्व जानकार थे वे लोग आए थे. और जब यहाँ पे आए थे तो जानवरों के आतंक क्षेत्र था, तो वो आतंक से बचने के लिए, जानवरों से बचने के लिए इस पक्के मकान का निर्माण करवाया गया था. तब से स्ट्रक्चर इसी तरीके से? जी जी, जब तब से स्ट्रक्चर ऐसी ही है. અમારો અંદાજો સાચો નીકળ્યો. ઉપર પર્વતોમાં ચોક્કસ કંઈક હતું જેનો સંબંધ રામાયણ સાથે, શ્રી રામ સાથે હતો. પરંતુ આ જગ્યાથી સૌથી મોટો ખતરો શરૂ થવાનો હતો. राम से जुड़ी हुई रिसर्च करने के लिए जो रिसर्चर आते हैं वो आदिवासियों की काफ़ी बड़ी टोली और सुरक्षा के काफ़ी साजो सामान लेकर ही इस जंगल में आगे बढ़ते हैं,
क्योंकि बताया जाता है कि इस जंगल में छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला ब्लैक पैंथर मिलता है। इसके अलावा चीता, शेर, बाघ, भालू जैसे कई खूंखार जानवर भी इस जंगल में है, जिसकी वजह से अब इस जगह से आगे बढ़ना खतरे की घंटी है। लेकिन राम से जुड़े हुए साक्ष्यों तक आपको पहुंचाने के लिए हमें इस खतरे की घंटी को पार करते हुए आगे बढ़ना होगा। આદિવાસી લોકોના કહેવા પ્રમાણે કેટલાક દિવસ પહેલા આ વિસ્તારમાં કાળો ચિત્તો જોવા મળ્યો હતો। આ સમયે જ આદિવાસીઓ અટકી જવાનો ઇશારો કર્યો। હરિસિંહ ઝડપથી એક તરફ દોડ્યા, પછી જે જોવા મળ્યું તેનાથી અમારી ટીમ પણ કાંપી ગઈ। इस जगह पर एक जंगली भैंसे को कुछ दिनों पहले ही बाघ या तेंदुए जैसे खूंखार जंगली जानवर ने मारकर गिराया है। हमारे साथ आए हुए आदिवासी दादा का कहना है कि करीब 3-4 दिन पहले ही तेंदुए या बाघ जैसे जानवर ने इस भैंसे को यहाँ मार गिराया। दादा, ये कब का शव दिखाई दे रहा है? ये 3-4 दिन पहले का गिराया है इसको। थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि लौट का जानवर आ सकता है, क्योंकि अभी पूरा मांस बचा हुआ है। પગના આ નિશાન હરિસિંહની આશંકાને સાચા સાબિત કરી રહ્યા હતા। અહીં રોકાવું યોગ્ય ન હતું। मेरा एक सलाह है, आगे तो बढ़ेंगे लेकिन हमको सतर्क रहकर चलना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सतर्क रहते पूरा हुए। टीम को साथ लेकर चलना मेरी जिम्मेदारी है और सुरक्षित यहाँ से निकालना भी जिम्मेदारी है। जी जी जी, बिल्कुल। लोकल गाइड होने के कारण तो ये हमको सतर्क रहकर चलना है, पास पास में रहना है पूरा टीम को। जी जी, बिल्कुल। टीम बिखरना ना पाए और सब लोग कान लगा के सुनते रहे कहीं से आहट तो नहीं आ रही है। नहीं नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सारी आगे बढ़ते हैं। आहटों को देखते हुए और हम लोग बिल्कुल करीब रहते हुए ही, टीम के सारे लोग करीब रहते हुए ही, एक दूसरे के बिल्कुल करीब रहते हुए ही साथ में चलेंगे। गोविंदा जो मेरे कैमरामैन हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि गोविंदा, हम लोग साथ में ही आगे बढ़ेंगे। जितने शॉट्स होते हैं, जैसे होते हैं और जितना हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं वो हम पास में करीब रहकर ही विजुअलाइज करेंगे। आप भी दूर मत जाइए। ખતરાને સમજી જતા જ અમારા પગ તેજ થઈ ગયા। જેવા આ વિસ્તારથી આગળ નીકળીશું, રામાયણ સાથે જોડાયેલા કેટલાક સબૂત પણ આપણે જોઈ શકીશું। કેટલાક કલાકો વધારે ચાલ્યા બાદ અમે અમારી મંજિલ પર હતા। એક પર્વત પર બનેલું શૈલચિત્ર આંખોની સામે હતું। इस शैलचित्र में हमें दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति थोड़ा बड़ा है और दूसरा व्यक्ति, दूसरी जो आकृति है उससे थोड़ी छोटी है। कहते हैं कि ये बड़ी वाली आकृति राम है और दूसरी आकृति में लक्ष्मण है। ये दोनों विलाप कर रहे हैं। सीता हरण के बाद जब राम और लक्ष्मण बहुत ही दुखी हुए, बहुत ही विलाप करने लगे, तो उस वक्त उस घटना क्रम को लक्ष्मण ने इन चट्टानों पर उकेरा। પરંતુ આ એ નિશાન નહોતા જેનો દાવો કરવામાં આવતો હતો। તેના માટે પર્વતની બીજી બાજુ જવાનું હતું। ખતરો હતો પણ જવું જરૂરી હતું। બીજી તરફ પર્વતો પર એક સાથે અનેક ચિત્રો બનેલા હતા, જેમાં કેટલાક માણસ હતા, જાનવર હતા, કેટલીક अन्य ચીજ વસ્તુઓ પણ હતી। પરંતુ સમજમાં નહોતું આવતું કે અમે ગાઈડની મદદ કેમ લીધી। ये लगभग 8000 साल पुराने बनाए हुए शैलचित्र है। आप देखिए, इसमें एक हिरन है, फिर यहाँ पे पंचवटी है, पंचवटी के बाद यहाँ पर ये लक्ष्मण रेखा है, उसके बाद ये सीता को घसीट कर जो ले जा रहा है हाथ पकड़ कर रावण, वो है। और जैसे आज के समय में हाईलाइट करते हैं किस चीज़ को, वैसे इंडेक्स में ये विमान जो पुष्पक विमान बनते हैं, ये हाईलाइट करके दिखाया गया है अलग से पोस्टर। દાવાનું માનીએ તો અહીં સીતા હરણ સાથે જોડાયેલા દરેક પાત્રનું ચિત્ર છે। પંચવટીનો આશ્રમ, લક્ષ્મણ રેખા, હરણ, સીતાનું હરણ કરતો રાવણ અને રાવણનું પુષ્પક વિમાન। अगर इस चलचित्र को हम लोग ठीक तरीके से देखें तो ये पूरा घटनाक्रम हमें सीता हरण की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक मृग हमें दिखाई दे रहा है, जो स्वर्ण मृग था। मारी जो स्वर्ण मृग बनकर आया था सीता को लुभाने के लिए, सीता को आकर्षित करने के लिए, वो स्वर्ण मृग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद बताया जाता है कि ये पंचवटी जो है, ये पंचवटी की आकृति है। उसके बाद जो लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण ने खींची थी, उसकी एक हल्की सी आकृति अब यहाँ पर दिखाई दे रही है।
लंकेश दशानन रावण। तो यहाँ पर एक आकृति हमें एक ऐसी आकृति दिखाई दे रही है जिसे जबरदस्ती कोई व्यक्ति खींच रहा है। देखिए यहाँ पर रावण का चित्र जो है वो धुंधला हो चुका है, लेकिन सीता का जो चित्र है वो अभी भी क्लियर दिखाई दे रहा है। एकदम अभी भी इस चित्र में स्पष्टता है, लेकिन रावण का जो चित्र है वो धुंधला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हल्का सा ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई इस आकृति के हाथ को खींच रहा है और यहाँ पर वो दूसरा चित्र रहा होगा। देखिए ये चेहरे का आकार है, यहाँ पर नीचे उसका पूरा शरीर है और ये चेहरे का आकार जो है यहाँ से मिट चुका है। स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए ना, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए स्वामी। उसके बाद बताया जाता है कि ये पुष्पक विमान का चित्र है, जिसे एक स्पेशली इंडेक्स में लक्ष्मण ने बनाया था, विशेष रूप से रेखांकित किया गया था। પથ્થર પર બનાવેલા ચિત્ર ઝાંખા પડી ગયા હતા. હરીશસિંહ ન હોત તો તેને સમજવા મુશ્કેલ હતા, જેઓએ લગભગ 15 વર્ષ પહેલા આ ચિત્રોને જોયા હતા. लगभग 8,000 साल पुराने शैल चित्र हैं जो समय और वातावरण के प्रभाव के कारण ये धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो आपने जब इन्हें 12-15 वर्षों पहले जब इनको देखा था तो तब ये क्लियर दिखाई देते? एकदम क्लियर था, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। और अब धीरे धीरे जब लोग बाग उसको जान करके अब आए तो कुछ तो इसके कुछ पुराने फोटोज हैं आपके? जी हाँ, मेरे पास पुराने फोटो हैं जिसमें क्लियर सब कुछ है। અમે કેવી રીતે માનતા કે જે અમને બતાવવામાં આવી રહ્યું છે તે સાચું છે? કેવી રીતે માનીએ કે આ શૈલ चित्र 8,000 વર્ષ જૂના રામાયણ કાળના છે? પૌરાણિક કાળના હોય તો પણ તેનો સંબંધ શ્રી રામ સાથે છે તે કેવી રીતે સાબિત થાય? આગળ અનેક સવાલોના જવાબો સામે આવ્યા, પરંતુ સફર અધૂરી હતી. સૌથી ચોંકાવનારી તસવીર તો હજુ બાકી હતી. અમને જે મળ્યું હતું તે પ્રાચીન શૈલચિત્રોના અવશેષ હતા, જે 8,000 વર્ષ જૂના હતા, મતલબ રામાયણ કાળના માનવામાં આવી રહ્યા છે. જો કે અમારી પડતાલ હજુ પૂરી નહોતી થઈ, હજુ પર્વત પર જવાનું હતું, એક અંધારી ગુફામાં. કહેવાય છે કે ત્યાં આનાથી મોટા પુરાવા હયાત છે, જ્યાં અમારા દરેક સવાલોનો જવાબ પણ મળી જશે. રાત પડી ગઈ હતી. અમે નજીકના ગામમાં જઈ રહ્યા હતા. ત્યાં રાત્રિ વિતાવ્યા બાદ સવારે ગુફાની શોધમાં નીકળવાનું હતું, જ્યાં કેટલાક અન્ય પુરાવા હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. રાત્રે જંગલમાંથી નીકળવાની બધાને ઉતાવળ હતી, જેનું પરિણામ ખરાબ આવ્યું. બધા એકબીજાથી દૂર થઈ ગયા. दादा, सिंह साहब, दादा, साथ वाले लोग कहाँ चले गए हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। और इस घनघोर अंधेरे में जंगल में कहाँ जाए, कैसे आगे बढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठंड काफ़ी बढ़ गई है और ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े भी हमारे पास नहीं है। ऐसे में इस ठंड से बचने के लिए हमें सबसे पहले तो अलाव जलाना होगा और उसके बाद अब शायद से सुबह ही हम हमारे साथियों को खोज पाएंगे। બધાને શોધવાનો વધુ એક પ્રયાસ કર્યો. પરંતુ અંધારામાં આગળ વધવું યોગ્ય ન હતું. રાત જંગલમાં જ વિતાવવી પડે એમ હતી. मिट्टी का तेल होने की वजह से हमें आग जलाने में काफ़ी मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, जल्दी ही आग जल गई है। और ठंड से जो है वो राहत मिल रही है। और आग जलने की वजह से कोई खुखार जानवर भी, कोई जंगली जानवर, कोई हिंसक जानवर भी हमारे पास नहीं आएगा। ગાઢ જંગલ, રાતનો સન્નાટો અને જંગલી જાનવરોનો અવાજ.
ખતરો ચારે બાજુ હતો, પરંતુ અમારી ટીમ ખતરા સાથે બાથ ભરી રહી હતી. ત્યારે જ એક આહટ સંભળાઈ. લાગ્યું કે કોઈ અમારી તરફ આવી રહ્યું છે. आदित्य जी, अरे सिंह साहब है। हाँ अरे सिंह साहब कहाँ रह गए थे हम लोग? यार मैं डर गया था, एकदम अकेला हो गया था पूरा जंगल में. आप ढलान कहाँ? के बाद एकदम डर गया था, कुछ मोड़ने के बाद दिखता नहीं था, अकेला हो गया था पूरा. हम लोग भी जो है कि हम लोग भी पता नहीं ढलान से जहाँ हमको जगह मिली हमको पहाड़ जो है तुरंत उतरना था, और पहाड़ हम लोग भी सब लोग जो है कि जहाँ से जगह मिली वहाँ से उतरे. ગાઈડને મળવાથી થોડી રાહત થઈ, પરંતુ ડરના કારણે ઊંઘ ના આવી. આખી રાત જાગતા રહ્યા. इस जंगल में बेहद ही खौफनाक रात गुजारने के बाद अब दिन हो चुका है, और दिन की लालिमा जो है वो इस जंगल में साफ दिखाई दे रही है. इस रोशनी के भरोसे हम लोग इस जंगल में आगे का सफ़र तय कर सकते हैं. रात भर हम लोग सोए नहीं है, जिसकी वजह से शरीर में काफ़ी थकान है. लेकिन राम के दूसरे साक्ष्य तक पहुंचने के लिए, इस कहानी के हमारे आखिरी पड़ाव तक पहुंचने के लिए हमें हमारे सफ़र की शुरुआत तुरंत करनी होगी. અમારી મંજિલ તે ગુફા પર્વતની બીજી બાજુ હતી. કહેવાય છે કે સીતાની શોધમાં રામ ઘણા વિચલિત થઈ ગયા હતા. પછી એ જ ગુફામાં રામે ભગવાન શિવની તપસ્યા કરી હતી. લોકો કહે છે કે તે જગ્યા પર કેટલાક શૈલચિત્ર પણ છે. તેની કહાની પણ રામાયણ સાથે જ જોડાયેલી હતી. કેટલાક કલાકોના ચઢાણ બાદ અમને પથ્થરો પર કંઈક જોવા મળ્યું. કદાચ શૈલચિત્ર જ હતા, પરંતુ તે ખરાબ થઈ ચૂક્યા હતા. આસપાસ અનેક ચિત્રો હતા, પરંતુ બધાની હાલત ઘણી ખરાબ હતી. कहते हैं दंडकारण्य के जंगल के इसी पहाड़ की ऊपरी चोटी पर मौजूद है वो गुफा, जहाँ पर सीताहरण के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने रात्रि विश्राम किया था. इस गुफा के इस निचली छोर पर कई शैलचित्र यहाँ भी बने हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वक्त के साथ ये शैलचित्र काफ़ी धुंधले हो चुके हैं, और अब उन्हें सामान्य आँखों से देखने के बाद उस तरीके से बयां कर पाना काफ़ी मुश्किल है. અહીં કાંઈ મળ્યું નહીં. કદાચ ગુફામાં કંઈક મળે. દાવો છે કે આ જગ્યા ત્રેતાયુગની છે. અમારી આંખો કોઈ નિશાનીને શોધી રહી હતી. આ જગ્યાથી અમારા ગાઈડ પણ અજાણ હતા. અમે આગળ વધતા ગયા, પરંતુ કંઈ જોવા મળ્યું નહીં. युगों पुरानी ये गुफा सही में अंतहीन है. जैसे जैसे हम लोग इस गुफा के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये गुफा अपना आकार बदलती जा रही है. छोटी छोटी कंदराओं से निकलने के बाद गुफा का और विशाल रूप हमें दिखाई देता है. काफ़ी समय से हम लोग इस गुफा में घूम रहे हैं, लेकिन इस गुफा का कोई अंत हमें नहीं दिखाई दे रहा है. इस गुफा के स्ट्रक्चर को हम लोग ठीक तरीके से देखें तो ये हार्ड रॉक की चट्टानी गुफा है. ये चूने के पत्थर वाली गुफाएं नहीं है जो पानी के कटाव से या किसी अन्य वजह से बन जाती है. ये गुफाएं युगों पुरानी होती है, और वैज्ञानिक भी हार्ड रॉक की इन गुफाओं को करीब 8 से 10,000 साल से भी ज़्यादा पुराना मानते हैं. આ ગુફાનો ખરેખર કોઈ અંત ન હતો, પરંતુ અહીં કોઈ શૈલચિત્ર ના મળ્યું. એવા કોઈ નિશાન પણ ના મળ્યા જે આ જગ્યાને શ્રીરામ સાથે જોડી શકે.